السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز، میں ہوں علی سرور۔ ہم بات کر رہے ہیں جی آج غیر قانونی جو مقیم ہے پاکستان میں افراد، ان کی ملک بدری کی ڈیڈ لائن کا آج آخری دن ہے۔ اگر یہ نہیں جاتے تو پھر قانون کے مطابق انہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا، جیل بھی ہو سکتی ہے اور ان کی جائیدادیں بھی ضبط ہوں گی۔ اور آج چونکہ آخری دن ہے تو قانون کو فالو کرتے ہوئے جو لوگ چلے جائیں گے وہ اپنے ممالک جا سکتے ہیں، جبکہ جو قانون کا احترام نہیں کریں گے انہیں جائیداد ضبطی جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے گی، ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا۔ اچھا، پاکستان میں غیر ملکیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ افغان پناہ گزین ہے۔ پہلی جب کھیپ آئی یعنی 30 لاکھ افغان پاکستان آئے، وہ جنرل ضیاء کے دور میں جب رشیا نے حملہ کیا تھا افغانستان پر اور جہاد کے نام پر ہمارے یہاں سے بھی بہت کچھ ہوتا رہا، تو اس وقت 30 لاکھ افغانی پاکستان آئے تھے۔ دوسری طرف جب ایک بہت بڑی تعداد دوبارہ آئی پاکستان، وہ آئی 9/11 حملے کے بعد، اور امریکہ نے جب حملہ کیا افغانستان پر تو 17.5 لاکھ افغانی پاکستان آئے۔ تو اس وقت یورپ نے یقین دہانی کرائی تھی اور دیگر ممالک نے کہ تقریباً 7.5 لاکھ افغانیوں کو وہ اس جنگ کے بعد اپنے یہاں جو ہے اجازت دے دیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ پاکستان سے جو غیر ملکی انخلا ہونا تھا، بار بار ان کو اس سے پہلے بھی کہا جاتا رہا، اور لیکن بہت سارے لوگ نہیں گئے۔ اور اب بھی جو افغان کونسل جنرل ہیں ان کے مطابق تقریباً کراچی سے 1.25 لاکھ افغان جو ہیں واپس جا چکے ہیں، اور جو گرفتار کیے گئے افراد ان کو افغانستان یا متعلقہ ممالک کو واپس بھیجا جائے گا، اور ان سب کی گرفتاری جو ہے وہ فورن ایکٹ کے تحت ہو رہی ہے یا اب مزید ہوگی۔ جو لوگ نہیں جائیں گے اور جو لوگ خاص طور پر ان کے آنے کے بعد، افغان اگر میں بات کروں صرف افغانیوں کی، تو ان کے آنے کے بعد جرائم میں جہاں اضافہ ہوا ہے، منشیات کے حوالے سے بڑے اضافے ہوئے ہیں، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ صحافی عبدالولی موجود ہیں۔ بہت شکریہ عبدالولی، کیا کہیں گے غیر ملکیوں کی؟ اب بات کر رہے ہیں ہم کہ آج ملک بدری کی ڈیڈ لائن کا آج آخری دن ہے، اور اب تک جو سوچا گیا تھا کہ شاید بڑی تعداد چلی جائے گی، اب تک ایسا نہیں ہو سکا۔ علی بھائی بہت بہت شکریہ۔ 3 اکتوبر کو جو ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے 31 اکتوبر کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ دے دی گئی تھی کہ اب جو بھی غیر ملکی پاکستان میں جو ہے وہ غیر قانونی وہ جو ہے 31 اکتوبر تک پاکستان سے چلے جائیں، ان کی ڈیڈ لائن باقاعدہ طور پر آخری روز ہے۔ لیکن حکومت پاکستان کے مطابق اب تک جو ہے وہ تقریباً 33,000 جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں وہ رضاکارانہ جا چکے ہیں، اور تقریباً یہ 3 اکتوبر کے بعد اب تک واپس جا چکے ہیں۔ لیکن اب بھی سرکاری جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 30 لاکھ جو ہے وہ رہائش پذیر ہے، جس میں 17 لاکھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 17 لاکھ کے قریب غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہے۔ اس کے علاوہ جو بنگالی ہے وہ بھی اسی طریقے سے غیر قانونی طور پر پاکستان کے مختلف رہائش پذیر ہے۔ حکومت کی جانب سے 3 اکتوبر کو یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ 31 اکتوبر تک جو غیر قانونی مہاجرین ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کو باقاعدہ طور پر ڈپورٹ کیا جائے گا، اور گرفتاری کے بھی امکانات موجود ہے۔ لیکن اب تک جو ہے وہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 33,000 افراد ہی واپس افغانستان جا چکے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد اب بھی اچھا، اس میں پاکستان ولی آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں افغان کونسل جنرل کا بھی بیان شامل کرنا چاہوں گا، جنہوں نے کہا ہے کہ کراچی سے 1.25 لاکھ افغان واپس جا چکے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بڑی تعداد تو کہی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ 30 لاکھ افغانی ایک بار آئے، یعنی جا کے دور میں جب رشیا نے حملہ کیا تھا، اور 17.5 لاکھ وہ افغانی ہیں جو 9/11 کے بعد جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان تو یہاں آ گئے تھے وہ۔ اب ان کو واپس بھیجنے کے لیے ڈیپورٹ کیا جائے گا، جو نہیں جائیں گے یا گرفتاریاں بھی ہوں گی، جائیداد بھی ضبط ہوگی۔ تو اس حوالے سے اب تک جو سچویشن ہے، خاص طور پر میں بات کروں صرف اس وقت ہم بات کر رہے ہیں صرف سندھ کے حوالے سے، کیونکہ پنجاب میں تو 3 نومبر سے شروع ہوگا انخلا کا تاریخ جو مقرر کی گئی ہے۔ اب آپ کے پاس کیا اعداد و شمار ہیں، کتنے لوگ جا چکے ہیں، اور آج چونکہ آج آخری دن ہے تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس وقت؟ اور پھر جو کہا جا رہا ہے مساجد میں اعلانات بھی کیے گئے ہیں۔ جی بالکل علی بھائی، مختلف ہولڈنگ سینٹر جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ڈسٹرکٹ وائز اور ٹاؤن وائز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، جو اب تک رضاکارانہ طور پر نہیں گئے ہیں، اور آج کے بعد جو ہے انہیں پر ہولڈنگ سینٹر میں رکھا جائے گا۔
वहां पर उन्हें रिफ्रेशमेंट भी प्रोवाइड की जाए। उसके बाद बाकायदा ट्रेन जो है वो पिशावर के लिए रवाना होगी। सिक्योरिटी में उन्हें तोखम बॉर्डर पर जो है वो वहां पर जो तोखम बॉर्डर पर इंतजामिया है उनके हवाले किया जाएगा और उसके बाद बाकायदा तौर पर उन्हें वहां से डिपोर्ट किया जाएगा। अली भाई, हमने दरअसल इसके बैकग्राउंड पर भी जाना होगा, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में ही कहा कि किस तरीके से जो है वो अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आया। उसके बाद यूरोप की जानिब से भी ये स्टेटमेंट आया कि वो अफगान यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज में एडजस्ट करेंगे, लेकिन उस तरह नहीं हुआ। अब अलबत्ता तो बरतानिया की जानिब से जरूर 12 मखसूस फ्लाइटों का कहा गया कि वहां पर जो है वो उन्हें कर दिया जाएगा, लेकिन अब उसमें भी हमें कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। और ये समझिए कि अब जो हालिया जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, इसमें से जो 24 जो धमाके हुए हैं पाकिस्तान में अब तक जो है वो ये पिछले 2 महीनों में, हुकूमत ये समझती है कि जिसमें 15 के करीब है वो अफगान शहरी इन्वॉल्व है इस दहशतगर्दी के वाकयात। सबूत मौजूद है, जाहिर है जी। और इसके इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पंजाब अगर वहां पर अगर क्राइम रेट हम देखें तो वहां पर भी सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक ज्यादातर जो क्राइम रेट में इन्वॉल्व है वो अफगान मुहाजिरीन ही है। इसलिए हुकूमत ये समझती है कि हमने जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसे ठीक करना है। इसके अलावा हुकूमत ये भी समझती है कि जो क्राइम रेट है उसमें भी कमी करने के लिए ये जरूरी है कि वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन को मुल्क से जो बदर करे। और उसके बाद हुकूमत ने ये भी साथ में अनाउंसमेंट की है कि वो तमाम तर अफगान शहरी जो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो उनको जो है वो वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी से वीजा हासिल करना होगा और वो कानूनी तौर पर पाकिस्तान वापस आए, अपना बिजनेस करना चाहते हैं या दीगर वो यहाँ पर रिहाइश पजीर रिहाइश हासिल करना चाहते हैं। अच्छा वली, इसमें एक बड़ी अहम बात ये भी है कि चूंकि अफगान पनाह गुज़ीन जो है यहाँ पर जो ज़िया के दौर में आए, जब रशिया ने हमला किया अफगानिस्तान पर, एक बड़ी तादाद थी, 30 लाख के लगभग बताए जाते हैं। और अच्छा, अब जो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं जो गैर मुल्की हैं कि जनाब वो कौन से लोग हैं जिन्हें इस्तिस्ना हासिल होगा या जिनके पास नादरा का शनाख्ती कार्ड है या जिन्होंने यहाँ शादियाँ कर ली हैं वो मुकीम हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, या ख़ास तौर पर जो बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने जायदादें हासिल कर ली हैं? जी, इसके लिए भी जो निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आईन पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज मौजूद नहीं है। अगर से आकर यहाँ पर करता है तो उन्हें किस तरीके से, अगर पाकिस्तानी लड़की से आकर कोई अफगान शहरी या दीगर मुख्तलिफ मुल्क से आकर यहाँ पर वो शादी करते हैं उनके लिए आइन क्या कहता है, इसमें भी कोई चीज वाज़ेह नहीं है। तो मुख्तलिफ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जायजा लिया जाता है। इस वक्त माजी भी जो है हुकूमतें देती रही। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की तारीख दी गई, उससे कबल भी तारीख दी गई, लेकिन इस तरीके से हमने सख्तियां नहीं की क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है कि निगरान सेटअप की जानिब से ये डेडलाइन दी गई है। माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी का फैसला किया गया, तो क्योंकि पूरी हुकूमत मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो दीगर कौम परस्त जमातें हैं, स्पेशली जो पश्तून बेल्ट की जो जमातें हैं, उनकी जानिब से मुज़ाकराती वक्त मौलाना फजल रहमान साहब वो जो है वो मियां साहब के पास गए और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो जो अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी फैसला वापस नरमी आई। लेकिन अब जो है वो शुरू में जो सियासी पार्टियां हैं जिसमें अवामी नेशनल पार्टी है या दीगर जो पश्तून बेल्ट की जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी सख्त स्टेटमेंट जरूर सामने आया, लेकिन उसके बाद हमने उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं देखा जिसमें अहमद वली खान साहब है या जो दीगर महमूद खान अचगरी साहब है उनकी जानिब से भी कोई सख्त स्टेटमेंट अब सामने नहीं आ रहा। माजी में ये अपना सख्त स्टेटमेंट इस पर रखते थे कि जो भी अफगान शहरी है वो यहाँ पर अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, वो रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन अब जो फैसला किया गया है शुरू में जरूर जो है वो इसकी जानिब से इस फैसले पर तनकीद की, लेकिन अब से जो खामोशी है लगता है कि कहीं से जरूर प्रेशराइज किया गया है कि वो भी इस तमाम तर जो सूरत-ए-हाल है इस पर बात करें। और अब हम देख रहे हैं कि वो इस पर बात नहीं कर रही। परस्त जमातें हो या नेशनल लेवल की जो जमातें हो, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर ये कहती रही कि उन्हें जो है वो यहाँ पर रिलीफ फराहम किया जाए, लेकिन इस तरह कोई स्टेट सामने
सामने नहीं आ अच्छा रहा। वली, आवाज़ का और आपका किसी के बड़ा इसमें इशू है मेरे ख्याल, जिस जगह आप मौजूद हैं वहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है, कि ऐसी जगह आ जाइए जहाँ सिग्नल कुछ बेहतर हो जाए। नाज़रीन, वली से हम बात कर रहे हैं और वो उन्होंने बताया जिस तरह के गैर कानूनी मुकीम जो अफराद हैं, मुल्क बदरी की डेड लाइन का आज आखिरी दिन है और एक बड़ी तादाद मौजूद है, न सिर्फ अफ़गानी बल्कि दीगर ममालिक से जो आए लोग हैं यहाँ, पनाह गुज़ीन कह लीजिए उन्हें, या गैर कानूनी मुकीम हैं। ये बड़ी अहम बात है, गैर कानूनी मुकीम और पनाह गुज़ीन अलग अलग है। और फिर ये जो अफ़गान महाजरीन की हम बात करते हैं जो आए थे जब रशिया ने हमला किया, उसके बाद 9/11 के बाद 7.5 लाख और उससे पहले 17.5 लाख और उससे पहले 30 लाख तकरीबन आए थे। यूरोप और दीगर ममालिक ने, जिस तरह वली ने भी बताया आपको, कि यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि 7.5 लाख के लगभग लोगों को यूरोप के दीगर ममालिक में बसाया जाएगा और उनको वहाँ रखा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब तक की जो परवाज़ें पाकिस्तान से रवाना हुई हैं, 2000 अफराद के हवाले से बात हो रही है कि यूरोप में 2000 अफराद पनाहगज़ीनों को बरतानिया भेज दिया जाएगा, लेकिन जो रवैया आलमी बरादरी का रहा है। वली, अब बेहतर आवाज़ आ रही है आपको? जी जी अली भाई, मैं सुन रहा अच्छा, हूँ। अब तक के वली जो अफ़गान महाजरीन के हवाले से आलमी बरादरी ने जो यकीन दहानियाँ कराई थी, उनका जो रवैया रहा है वो तो बड़ा मायूस कुन है, जिन्होंने जो जो वादे पाकिस्तान से किए थे, और एक बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान में इस वक्त भी मुकीम है। जी बिल्कुल अली भाई, यूरोप की जानिब से ये जरूर कहा जाता रहा कि जो भी अफगान मुहाजिरीन हैं उन्हें पाकिस्तान में क़याम के बाद जो है वो वहां पर स्टे के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन अब तक जो है वो इस तरह नहीं हो पाया। और अब भी बरतानिया की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आया कि अब मखसूस फ्लाइट जो है वो चलाई जाएगी, अब हम देख रहे हैं कि उसमें भी हमें कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही। और अब एक बार फिर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो अपना फैसला वापस ले और जो अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी का फैसला किया गया है उसे रोके या उस पर नजरसानी करे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसे उन्हें ठीक करना है और वो ये समझती है कि जो आलमी कवानीन है वो भी उन्हें इजाजत देती है पाकिस्तान हुकूमत को कि वो किसको यहाँ पर स्टे करने के लिए कहे, और किसी को अगर वो मुल्क बदरी के लिए कहते हैं तो आइन में ये चीज मौजूद है और उनके पास ये इख्तियार है कि वो उन्हें मुल्क बदर कर सके। तो अब ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से ये बात जरूर सामने आई है कि पाकिस्तान अपने इस फैसले पर नजरसानी करे, लेकिन अब जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है कि आखिरी डेडलाइन है। और आज अच्छा, ये अब तक की वली, अब ये डेडलाइन के हवाले से अगर हम अपने नाज़रीन को बता सकें कि आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी, क्या इसमें मज़ीद इजाफे की, तोसी की कोई बात सामने आई है अब तक? नहीं, जो निगरान वजीर दाखिला है सरफराज बुख्ती साहब, उनकी जानिब से सख्ती से जो है वो ये कहा गया है कि आज के बाद इसमें कोई तोसी नहीं की जाएगी और आज की जो डेडलाइन है 31 अक्टूबर की, उसमें कोई जो है वो किसी भी किस्म की कोई तोसी का इम्कान मौजूद नहीं है और उन्होंने तमाम तर जो इम्कानात है उसे रद्द किया है। और आज के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर उनकी डिपोटेशन का फैसला और गिरफ्तारी के भी इम्कानात मौजूद है। और आज के बाद जो भी अफगान मुहाजिरीन जो अब तक रजाकाराना तौर पर नहीं गए हैं उन्हें जो है वो मुख्तलिफ होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें बजरिया ट्रेन जो है वो पिशावर और उसके बाद तुरखम बॉर्डर पर इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ अफगान महाजिन कह लीजिए या गैर कानूनी मुकीम अफगान जो यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई हो रही, बल्कि जो बांग्लादेशी हों, बर्मी हों या दीगर ममालिक के लोग भी अगर गैर कानूनी पाकिस्तान में मुकीम हैं तो उनके खिलाफ भी आज की डेडलाइन उनके लिए भी है, और वो जिन्होंने उनको किराए पे रखा हुआ है, जिन्होंने उनको घर दिए हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई का कहा गया है और बाकायदा तौर पर जो मसाजिद है उसमें ये ऐलानात किए गए हैं कि अगर किसी ने ऐसे जो गैर मुल्की तौर पर जो मुकीम है, चाहे वो अफगान बरादरी हो या बंगाली बरादरी हो, उन्हें अगर रेंट पर जगह की है या बिजनेस पार्टनर्स में है तो उन्हें भी उनसे जो है वो जुदा किया जाए। अगर वो इस तरह नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई है पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक उनके खिलाफ। अच्छा वली, इसमें दोबारा ज़रा बता दीजिए, ख़ास तौर पर कुछ इस तरह की आवाज़ें भी आना शुरू हुई कि जी ये बहुत जल्दबाजी में फैसला हुआ है, हालांकि साल हर साल से हम मेज़बानी कर रहे हैं अफ़गान महाजरीन की या दीगर ममालिक से जो लोग आए जिनके यहाँ उस ज़माने में स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब ज़ाहिर अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आ गई है, हुकूमत आ चुकी वहाँ पर भी, तो ये अचानक फैसला हुआ और किन वजूहात की बिना पर? क्या क्राइम में मुलव्वस होने की वजह पर या और दीगर वजूहात भी हैं? जी देखिए, माजी में भी इस तरीके से फैसले हुकूमतों की जानिब से किए जाते रहे, लेकिन उस पर इस तरह सख्ती से अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन अब जो पिछले 2 माह में जो दहशतगर्दी के वाक़यात देखने को मिले हैं
जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स है उसमें ये समझती है कि जो 24 ब्लास्ट हुए उसमें तकरीबन जो 15 जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसमें अफगान मुहाजिरीन ही मुलविस है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ इस वक्त जो है वो कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज भी कराची में कार्रवाई हुई जिसमें 5 जो मुख्तलिफ जराइम में मुलविस अफराद थे उसमें जब उन्हें मारा गया और उसके बाद जब उनकी तहकीकात हुई तो वो 4 का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से था। और इसी तरीके से इस्लामाबाद में या पेशावर में जो दहशतगर्दी के या जो क्राइम रेट्स है उसमें ज्यादातर जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफगान मुहाजिरीन है वही मुलविस बताए जा रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत ये समझती है कि बॉर्डर मैनेजमेंट को ठीक करना और अमन व अमान के हवाले से इसी तरीके से मईशत में बेहतरी के लिए हुकूमत ये समझती है कि ये फैसला इस वक्त जो है वो नागुज़ीर है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है। और अब जो है वो हमें कहीं भी जो तोसी के इम्कानात है वो हुकूमत की जानिब से। अच्छा वली, इसमें अफगान महाजरीन अगर ये जिस तरह कहा जा रहा है जी 30 लाख पहले आए और उसके बाद 17.5 लाख दोबारा आए और ये जितनी बड़ी तादाद तो कहा जा रहा है कि शायद नहीं वापस जा सकेगी, लेकिन अगर जितने भी ज़ाहिर आज आखिरी और फाइनल डेट है, डेडलाइन है आज की, गैर मुल्की जो अफराद यहाँ मुकीम है, गैर कानूनी जो मुकीम है उनके लिए अगर यहाँ से ये चले जाते हैं सारे तो फिर मईशत पे कितने बेहतर असरात मुरतब होंगे इससे? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल है कि किस तरीके से हुकूमत इन तमाम तर चीज़ों को दोबारा से बेहतर करेगी और हुकूमत की क्या प्लानिंग है कि जब इन तमाम तर की जो इंखिला होगी तो किस तरीके से मईशत के लिए फैसले किए जाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ा हुकूमत के लिए चैलेंज है कि किस तरीके से वो 17 लाख यानी लाखों अफराद को बैक वक्त में जो है वो हुकूमत से वो मुल्क बदर करती है। हुकूमत के लिए चैलेंजिंग फैसला है, निगरान हुकूमत ने ये फैसला लिया है। अब ये देखना है कि किस तरीके से हुकूमत इस फैसले के बाद मईशत में स्टेबिलिटी ला सकती है, नहीं ला सकती, इस तरीके। अच्छा, ये लाखों अफराद को वली भेजने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं क्योंकि आज डेडलाइन की आखिरी रोज है आज तो? बिल्कुल, इंतजाम जो जिला इंतजामिया है, शहरी इंतजामिया है, उनकी जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो होल्डिंग सेंटर कायम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। इस तरीके से टाउन वाइज जो कमिश्नर्स है उनकी जानिब से भी होल्डिंग सेंटर कायम किए गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों से उन तमाम तर गैर कानूनी तौर पर जो अफराद मुहाजिरीन हैं उन्हें आज रात के बाद से जो है वो बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें वहां रखने के बाद बजरिया ट्रेन रवाना करके पेशावर या जो दीगर मुख्तलिफ ममालिक से हैं उन्हें कौन से इन अफराद को कौन से बॉर्डर से अफगानिस्तान भेजा जा रहा है? जो अफगान मुहाजिरीन हैं उन्हें जो है वो बजरिया ट्रेन पेशावर और उसके बाद जो है वो तुरखम बॉर्डर पर जो इंतजामिया है वहां पर उनके हवाले किया जाएगा। और ज्यादातर इम्कानात ये भी मौजूद है क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि अगर कोई पाकिस्तान वापस आना चाहता है कानूनी तरीके से तो वो वहां पर वो पाकिस्तान एम्बेसी से जो है वो वीजा लगवाकर पाकिस्तान आकर अपनी यहाँ पर जो बिजनेस है वो भी कर सकते हैं या यहाँ पर रिहाइश या तालीम जो एजुकेशन है उसके हवाले से अगर वो हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें भी परमिशन है। लेकिन उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि वो कानूनी तौर पर पाकिस्तान आकर जो है वो यहाँ पर कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद वो यहाँ आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अब्दुल वली साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे गैर कानूनी मुकीम अफराद की मुल्क बदरी के हवाले से कि डेडलाइन की आज आखिरी दिन है और लाखों अफराद जो यहाँ गैर कानूनी मुकीम हैं या अफगान पनाह गुज़ीन जो यहाँ मौजूद थे जिनकी मेज़बानी की साल हर साल पाकिस्तान ने, जो हमारी यकीनन मईशत में जिसके वो अच्छे असरात मुरतब नहीं हुए वो भी यहाँ मौजूद हैं। फिर यही वो लोग जो जिस तरह ख़ुद वली ने बताया भी आपको और आपने सुना कि जो अगर हम बात कर लें पिछले 3 या 4 माह के दौरान जो पाकिस्तान में इस तरह की वारदातें हुई हैं, ख़ुदकुश धमाके हुए हैं, हमारी फोर्सेस पर जो हमले हुए हैं 24 उसमें से 16 में ये गैर जो कानूनी तौर पर मुकीम अफगान वो मुलविस पाए गए। और उससे पहले भी इस तरह के वाक़यात में देखा गया कि मंशियात का कारोबार हो या क्रिमिनल दीगर एक्टिविटीज़ हों इसमें ये लोग मुलविस थे। इसके बाद फिर हमने देखा कि मईशत पे इसके बुरे असरात इस तरह मुरतब हुए कि यहाँ से फिर गैर कानूनी और डॉलर की स्मगलिंग भी शुरू की गई, असलहे की स्मगलिंग शुरू की गई। तो इस पर भी अब कड़ा हाथ डाला गया है और स्मगलिंग रोकी गई है और इस तरह मंशियात को रोका गया है। इनके ऊपर इस वक्त हुकूमत कार्रवाइयाँ भी कर रही है इन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है और फ़ॉरेन एक्ट के तहत जो है इन्हें गिरफ़्तार भी किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि 1 नवंबर से पहले घर खाली न करने वाले या क्या करवाने वाले
دونوں یعنی مالک مکان اور افغانی جو وہاں رہ رہے ہیں مقیم ہیں ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی، جبکہ برطانیہ 2000 افغان پناہ گزین جو ہے برطانیہ بھیجا جائے گا، اور ورنہ جو نہیں جائیں گے انہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا، جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے گی، جائیداد ضبطی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، بولانے کے بعد